Good morning, students. In the previous classes, we have studied all the topics of chapter 12 electricity. Now we are left with the numericals. So in this class, we'll study the numericals based on the topics which we have studied previously. So we'll start with the first topic, Ohm's law, and we'll do the numerical based on the Ohm's law. First of all, the question is, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source? एक 220 वोल्ट का सोर्स है, उससे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज़ 1200 ओम. तो यहाँ पर हमारे पास रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज़ 1200 ओम एंड द वोल्टेज सोर्स इज़ 220 वोल्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, इफ़ इन प्लेस ऑफ बल्ब अ हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज़ कनेक्टेड. फिर हमने क्या किया, उस सर्किट में से ये 1200 ओम का जो रेसिस्टेंस वाला बल्ब था उसको हटाकर हमने एक हीटर लगा दिया जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है. नाउ what we have to calculate the current drawn by it. मतलब हमें क्या निकालना है, इन दोनों बल्ब और हीटर, इन दोनों का के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है. वी डू हैव अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो हमने क्या किया, सबसे पहले विल राइट द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज आर V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, resistance of bulb is 1200 ohm and resistance of heater is 100 ohm. And what we have to calculate, we have to calculate the current flowing through the bulb or the current flowing through the heater. So we know that V is equal to IR according to the Ohm's law. Ohm's law से हमने क्या पता है, V is equal to IR. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I is equal to V upon R. Now in place for bulb we'll use the formula I, that is current passing through the bulb will be equal to V upon resistance of the bulb, and we'll just substitute the values of volt 220 volt and the resistance 1200 ohm. So the current flowing through the bulb will be equal to 220 upon 1200 and we'll get 0.18 ampere answer. Similarly, when we are talking about the current flowing through the heater, we'll do the same thing, that is V upon resistance of the heater, that is 220 volt is the voltage and 100 ohm is the resistance of the heater. So like this way, on solving this fraction we'll get the value of I 2.2 ampere. So these are the two current passing through the bulb and the current passing through the heater are 0.18 ampere and 2.2 ampere respectively. So these are the two answers. Now the next topic is resistance and resistivity. So for resistance and resistivity, what we have to find, the question is a piece of wire of resistance 20 ohm. एक हमारे पास कोई वायर है जिसका resistance 20 ohm का है, is drawn out so that its length is increased to twice. और हमने उसको खींचा, पकड़कर खींचा तो उसकी लेंथ कितनी कर दी, डबल कर दी, its original length. Calculate the resistance and resistivity of the wire in the new situation. So what will be the new resistance or resistivity of the wire after stretching it to twice its original length. हमने उसको जब डबल लेंथ में उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसका जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो फॉर दैट वी नो द फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. दिस इज द फॉर्मूला. R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity, L is the length of the conductor and A is the area of cross section of a conductor. And the given value is resistance. जो original resistance है वो 20 ohm का है. तो इसको हम कैसे solve करेंगे? Question is clear? I think question is clear. Now अब हमने क्या किया, हमारे पास एक ही वायर था, उसी वायर को हमने स्ट्रेच किया. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द वायर, दैट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर V1 इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वायर V2. जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम वायर था वायर का, वही हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा. तो V1 इज इक्वल टू V2 और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एरिया इंटू लेंथ. तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे एरिया और लेंथ का. तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 आ जाएगा. इसी को हमने सॉल्व किया. मतलब हमने क्या किया, अगर L1 जो इनिशियल लेंथ L है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ 2L. एंड द रेशियो ऑफ द टू रेसिस्टेंस, जब भी हमें कोई दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है, सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली R1 अपॉन R2 कर देते हैं. तो R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा. और R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2. अब यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी है
यहाँ पे रो जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की, तो मटेरियल तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। सो द रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम, लेकिन रेसिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है। सो व्हाट विल डू, विल डिवाइड R1 बाय R2। तो हमने R1 अपॉन R2 किया, R1 का फॉर्मूला रो L1 अपॉन A1 और R2 का फॉर्मूला क्या है, रो L2 अपॉन A2। अब हमने देखा यहाँ पर कि R1 अपॉन R2 जब हमने इसको सॉल्व किया तो L1 की वैल्यू कितनी है, L है, और L2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ L। तो व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2। तो हमने यहाँ पर L1 और इधर L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास क्या आ गया, L1 की वैल्यू है L और L2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी से रेसिस्टिविटी कैंसिल हो जाएगी, एंड फाइनली विल गेट A2 अपॉन A1। अब A2 अपॉन A1 कितना होगा ये देखेंगे हम। तो A1 अपॉन A2 कितना है, L2 अपॉन L1। इस रिलेशन से हमने देखा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो यहाँ से हमने A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 कंसिडर किया, L2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ L रख दी और L1 की वैल्यू L, L से L कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट द वैल्यू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2, और A2 अपॉन A1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 2। इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो A2 अपॉन A1 विल गेट 1 अपॉन 2। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A2 अपॉन A1 इन दिस फॉर्मूला। तो हमने A2 अपॉन A1 किया एंड फाइनली विल गेट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये जो 2 था ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, और A2 अपॉन A1 की जगह 1 अपॉन 2 कर दिया। तो R1 अपॉन R2 कितना हो गया, 1 अपॉन 4। एंड फ्रॉम दिस विल गेट द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, द रेशियो ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 और R2 इज इक्वल टू 4 ऑफ R1। मतलब जो रेसिस्टेंस जो चेंज होगा, अगर लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा, और उस वजह से जो हमारे पास फाइनल जो चेंज इन रेसिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ R1। लेकिन R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20 ओम थी, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 इज 4 टाइम्स ऑफ द R1, तो 4 इंटू 20 कर देंगे, देन विल गेट 80 ओम। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द चेंज इन द रेसिस्टेंस, सॉरी जो फाइनल रेसिस्टेंस विल बी 80 ओम। बट फॉर द रेसिस्टिविटी इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। तो हमें पता है कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। और किसी भी मटेरियल को हम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कंसीडर करें, उससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। आयरन विल रिमेन आयरन वट एवर मे बी द लेंथ और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आयरन विल बी। सो द रेसिस्टिविटी डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो वायर था हमारे पास, उस वायर की हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया था, उसको खींच कर। अभी हमने क्या किया था, उस वायर को स्ट्रेच करके हमने चेंज लेकर आए थे उसके डायमेंशन में। अगर हमसे कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इन परसेंटेज। अब क्या होता है, जैसे अगर कोई किसी क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में इंक्रीज करवा देते हैं, वो पूछते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इन परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 300%। अगर हमसे यहाँ से पूछा गया है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ 300% इंक्रीज कर देते हैं, मतलब अगर उसकी लेंथ इनिशियल में अगर L है तो 300% कितना हो जाएगा L का 3L, और हमें क्या करना है, इस 3L से इसको और इंक्रीज करना है, तो L प्लस 3L विल बी इक्वल टू 4L हो जाएगी। मतलब वो जो लेंथ है वो 4 टाइम्स हो जाएगी अगर हम 300% से इंक्रीज करते हैं किसी लेंथ को। तो ये हमें कई जगह यूज़ करना हो सकता है, कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है। एंड इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 200%, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ किया है, 2 कर लिखा हुआ है, तो अगर इंक्रीज करते हैं टू 200%, मतलब कब तक इंक्रीज करना है, जब तक कि उसकी लेंथ 200% नहीं हो जाती, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 100% ही इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू 200%, दैट मीन्स हमें उस लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ डबल करनी है, तो इट विल बी L प्लस 2L हो जाएगा। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई जहाँ पर बाय 300% है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमें 300% ओरिजिनल वाली लेंथ में ऐड करना है, और जब जहाँ पर अब लिखा हुआ 200% या 300%, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसी को हमें उतने टाइम कर देना है। जैसे 200% है तो हमने क्या करना है, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 300% होता तो ये कितना हो जाता, 3L हो जाता। सो लाइक दिस वे वी हैव टू मेमोराइज और वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, कि अगर न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी होती है, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके बेसिस पे देखेंगे हमें क्वेश्चन। इन फिगर R1, अब ये जो फिगर है, लुक एट द फिगर। So in this figure we do have R1 and R2, R3, R4 and R5, ये 5 हमारे पास रेसिस्टर्स लगे हुए हैं,
और इन सबके जो वैल्यूज़ है वो गिवन है, R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30, R4 20 एंड R5 60 ओम एंड ए 12 वोल्ट बैटरी। और यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सो इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। पहली चीज़ हमें क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है, और दूसरी चीज़ क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसके बाद क्या निकालना है कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसका फंडा समझ लेते हैं क्या होता है कि जब भी किसी बैटरी से हम करंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट आगे जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आने के बाद करंट ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जहाँ पर भी करंट अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, इसका मतलब ये वाला रेसिस्टर और ये वाला रेसिस्टर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आके करंट फिर एक साथ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये एमीटर लगा दिया बीच में सो दैट वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ दिस एमीटर। और हमेशा ध्यान रखना, एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। द रीज़न इज कि एमीटर जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो बहुत कम अमाउंट का रेसिस्टेंस ऑफर करता है। दैट्स वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और एमीटर से हमें क्या बेसिकली करंट को मेजर करना होता है, तो जितना भी करंट इस एमीटर से पास होगा वो पूरा का पूरा करंट ये एमीटर मेजर कर लेता है। दैट्स वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरा रीज़न क्या है कि एमीटर हमेशा कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ऑलवेज एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर क्यों कनेक्टेड होता है पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है। इसलिए हम हमेशा, अगर हम उसको वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो आगे उतने अमाउंट ऑफ करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई वी यूज टू प्रेफर कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू दैट ऑफ बैटरी। तो उसको हमेशा बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिर से करंट आया हमारे पास, और करंट यहाँ पर फिर से हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन भी पैरेलल में है। ऐसा नॉर्मली देखने में भी लग रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये तीनों भी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसको हमने क्या किससे डिनोट कर दिया, R12 से डिनोट कर दिया। तो फॉर दिस द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी R12, और इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय द parallel combination formula. It is given by 1 upon R12 will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, and we'll just substitute the values of R1 and R2. R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, R2 की वैल्यू 40 ओम। तो हमारे पास 1 upon R12 किसके बराबर आ जाएगा, 5 upon 40। ऑन सॉल्विंग दिस बाय टेकिंग LCM तो हमारे पास 5 upon 40 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो इसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और फाइनली वो 5 upon 40 आंसर लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। R12 इज इक्वल टू 40 upon 5 एंड फाइनल आंसर विल बी 8 ओम ऑफ दिस R12। इस R12 कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आया, 8 ओम हमारे पास आंसर आया। अब इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट विल डू 1 upon R3 4 and 5 will be equal to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5। जब हम ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन व्हाट विल गेट, ऑन टेकिंग द एलसीएम ऑफ द थ्री वैल्यूज व्हाट विल गेट, R3 4 5 ये मैंने रेसिप्रोकल करके ही डायरेक्टली लिखा है, 60 upon 6 विल बी द आंसर एंड विल गेट 10 ओम। तो इसका पूरा रेसिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम का, और इसका पूरा हो गया 8 ओम का। तो हमारे पास अब ये दोनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। अब देखो यहाँ से इसको हम पूरा एक ही रेसिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं R12, और इसको हम पूरा एक रेसिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं R345। तो ये दोनों तो आपस में सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि करंट पूरा इसमें से निकलेगा, फिर करंट इसमें से जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। सो इसके लिए हम डायरेक्टली इनके दोनों का रेसिस्टेंस का टोटल निकाल सकते हैं, दैट R12 एंड R345 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12345 को हमने कैसे लिख दिया, R12 प्लस R345। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीरीज में होगा। और हमें सीरीज का फॉर्मूला पता है कि R सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, डायरेक्टली हम उसको ऐड कर देते हैं एंड हेंस विल गेट 8 ओम प्लस 10 ओम, द आंसर विल बी 18 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट था टोटल रेसिस्टेंस वाले का, उसका आंसर कितना आया हमारे पास, 18 ओम आंसर आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट,
द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो फॉर दिस वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और टोटल रेसिस्टेंस कितना है 18 ओम का। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V अपॉन आर फ्रॉम द ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर I इज इक्वल टू V अपॉन आर किया और हमारे पास I की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह हमने 12 वोल्ट रख दिया और R की जगह 18 ओम। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया 0.67 एम्पियर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। तो हमारे पास ये दोनों का आंसर आ गया। सो लाइक दिस वे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बेसिस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जिनके कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, जैसे हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड। हमने 3 रेसिस्टर्स है हमारे पास, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। यहाँ पे या तो 4 ओम का रेसिस्टेंस मिल जाए, इन तीनों रेसिस्टर्स को हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है, कैसे भी करके हमें इसको कनेक्ट करना है सीरीज या पैरेलल में कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आए वो 4 ओम का आ जाए। और या दूसरा पार्ट है जिसमें हमें 1 ओम का, मतलब इन तीनों रेसिस्टर से हमें 4 ओम रेसिस्टेंस बनाना है और 1 ओम रेसिस्टेंस बनाना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बताने वाला हूँ वो ये है, वी हैव टू नोट दैट टू रिड्यूस द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जब हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिड्यूस करना होता है तब हम हमेशा रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, वेयरएज अगर हमें रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे रेसिस्टर्स को हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम चाहिए तो हमें रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा और अगर हमें रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 4 ओम हमें रेसिस्टेंस चाहिए, हमारे पास कितने ओम के हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें 4 ओम का रेसिस्टेंस बनाना है तो हमें एक काम कर सकते हैं, हम 3 ओम और 6 ओम, अगर इन दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 ओम से कम आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर 6 ओम और 2 ओम को कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल में तो हमारा आंसर 2 ओम से कम आएगा। तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 3 ओम और 6 ओम को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, जिससे हमारा आंसर कितना है, ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट 2 ओम रेसिस्टेंस। तो पहले हमने 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया तो हमारे पास आंसर आया 2 ओम। इसके बाद ये इन दोनों 3 ओम और 6 ओम के रेसिस्टेंस को हमने 2 ओम के साथ सीरीज में लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, सो add 2 ohm resistance in series with the parallel combination of 3 ohm and 6 ohm। अब इसका ग्राफ कैसे, इसका जो डायग्राम वो कैसे बनेगा, ये देखो। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 ओम एंड 6 ओम का रेसिस्टेंस ऐसे बनेगा। सो दिस विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 ओम का, और 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो लाइक दिस वे विल गेट द आंसर 4 ओम। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना है, सीरीज में लगाना है। अब 1 ओम का रेसिस्टेंस हमें चाहिए, तो अगर हम 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम इन तीनों रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर देंगे तो हमारा आंसर 2 ओम से कम होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम इनको डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाया एंड विल गेट 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट 1/r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 ओम का, दिस विल बी ऑफ 3 ओम एंड दिस विल बी ऑफ 6 ओम। तो 2 ओम, 3 ohm and 6 ohm, these are the resistors connected in parallel so that the equivalent resistance का आंसर कितना आ जाएगा, 1 ohm का रेसिस्टेंस आ जाएगा। सो लाइक दिस वे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टर्स। नाउ कम्स द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। मतलब हमें यहाँ पे चार्ज कितने दिए हैं, 96,000 कूलम चार्ज दिया हुआ है इन 1 आवर, और टाइम कितना दिया है 1 आवर।
थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हीट जनरेटेड, मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड हीट। तो H हमने जब उस टॉपिक को हमने पढ़ा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने टॉपिक पढ़ा था, उस टाइम पे हमारे पास एक फॉर्मूला आया था H इज इक्वल टू VIT, और अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और I की R की जगह हमने V रख दिया था। तो अब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला जो है हमारे पास H इज इक्वल टू VIT, तो वो देखेंगे हम। बट IT किसके बराबर होता है, IT इज इक्वल टू Q, और Q की वैल्यू कितनी है 96000 और V की वैल्यू 50 है। तो इनको बस डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड विल गेट 4.8 इंटू 10⁵ जूल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, बट R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो जब हमें R इज इक्वल टू V अपॉन I सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास H इज इक्वल टू VIT बन जाएगा, और IT किसके बराबर होता है, IT इज इक्वल टू Q, और Q की वैल्यू हमारे पास है, गिवन वैल्यू है, तो हमने H इज इक्वल टू QV सब्स्टिट्यूट करके 50 इंटू 96000 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट 4.8 इंटू 10⁵ जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, और W इज इक्वल टू QV होता है। तो हमने डायरेक्टली W इज इक्वल टू QV सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर W की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखना है दूसरा मेथड है, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमने क्या किया, इसी को जब सॉल्व किया एंड विल गेट 4.8 इंटू 10⁵ जूल, हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो दिस इज देयर आर टू मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द हीट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ कम्स द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू VI, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ था। सो इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, मतलब ये हमारे पास I की वैल्यू है और ये हमारे पास V की वैल्यू है, ठीक है। I इज 5 एम्पियर एंड V इज 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। अब इसका ये जो मोटर है उस मोटर का पावर हमें निकालना है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, और इस मोटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो हमने सबसे पहले पावर निकाला, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI की, फिर हमने V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। लाइक दिस वे विल गेट, ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स विल गेट 1100 वॉट। सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट लिखना मत भूलना। और यहाँ पे पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1100 वॉट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ विल फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ये सारे फॉर्मूलेज हमने अपने नोट्स में पढ़े हुए हैं। तो पावर का फॉर्मूला 1100 वॉट और टाइम इज 2 आवर्स, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1100 इंटू 2, तो इट विल बी 2200 वॉट आर। ये यूनिट क्या है, वॉट आर, ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द question numericals or based on the topics which we have studied in the chapter. Okay, so like this way you have to solve each and every question of your NCERT, and if in case you have any doubt, so you can just note down my number and you can contact me on my WhatsApp and you can clear your doubt. My number is 9406955436. Thank you.